Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Inner Product Spaces. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.3. Bismillahirrahmanirrahim. Eigenvectors and eigenvalues. Eigenvectors and eigenvalues. If A is n cross n is a square matrix over R, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इसके अंदर रियल नंबर्स हैं जी, देन स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ A। भाई लैम्डा को आपने आइगन वैल्यू ऑफ A कहना। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर V बिलोंग्स टू R की पावर n सच दैट AB इज इक्वल टू लैम्डा V। भाई सच दैट AB इज इक्वल टू लैम्डा V, अगर हम AB को लैम्डा V में लिख सकते हैं, AB बराबर होगा लैम्डा V के, देन लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है जी। देन लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ H, तो वी राइट AB इज इक्वल टू लैम्डा V। इफ A is a square matrix over R, then a scalar lambda belongs to R is called eigenvalue, is called an eigenvalue of A if there exists a non-zero column vector V belongs to R की power n such that AB is equal to lambda V. Note, in this case V is called eigenvector of A. In this case V is called eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda जी। भाई V को eigenvector बोल रहे हैं और lambda को eigenvalue जी। भाई V is called eigenvector of A and corresponding to eigenvalue lambda जी। Note, AB is equal to lambda V, we know AB is equal to lambda I into V। आप इधर शिफ्ट करें, V कॉमन ले लें, V इंटू क्या होगा A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। सिंस V इज नॉट इक्वल टू 0, भाई नॉन जीरो कॉलम वेक्टर V इज नॉट इक्वल टू 0, सो A माइनस दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तो एक लाजमी 0 का, सो A माइनस लैम्डा I इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सो A माइनस लैम्डा I इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 जी, इसको 1 कह दें। A मनफी लैम्डा I का डिटरमिनेंट क्या होगा 0 जी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 is known as characteristic polynomial of the matrix H. By left hand side of 1 is known as characteristic polynomial of the matrix H. By left hand side को आपने क्या बोलना जी, characteristic polynomial of the matrix H. Note, eigenvalues and eigenvectors are often called characteristic values and characteristic vectors respectively. By eigenvalues and eigenvectors. Eigenvalues and eigenvectors are often called characteristic values and characteristic vectors. भाई eigenvalues को आप characteristic values कह लो, eigenvectors को characteristic vectors कह लो respectively. थ्योरम है जी, नॉन जीरो eigenvectors of a matrix A corresponding to the distinct eigenvalues are linearly independent. आर क्या होगा जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट जी। दिक्कत है जी, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो क्या होंगे जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई वो क्या होंगे जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेट v1 v2 अप टू vn बी ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। भाई ये v1 आर नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कोर बिलोंगिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n रिस्पेक्टिवली। भाई फर्स्ट कर लें v1 से लेके vn तक नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज हमारे पास है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n रिस्पेक्टिवली। We prove the theorem by induction on n या by mathematical induction method. We prove the theorem by mathematical induction method. Case 1, if n is equal to 1, then v1 is linearly independent as v1 is not equal to 0. By v1 is not equal to 0, then v1 is linearly independent as v1 is not equal to 0.
by if we write alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus so on alpha and vn equal to 0. Number 1, if all alpha 1 alpha 2 alpha and 0 सारे कोएफिशिएंट 0 हों, भाई सारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, अल्फा 1 भी 0 है, अल्फा 2 भी 0 है, अल्फा n भी 0 है, देन ये जो वेक्टर होगा ना v1 v2 अप टू vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. इनको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ ऑल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नॉट इक्वल टू 0, सारे 0 ना, कुछ 0 भी हो जाए कोई इशू नहीं, सारे 0 नहीं है, देन v1 v2 अप टू vn आर लीनियरली डिपेंडेंट. इनको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट. भाई आर लीनियरली डिपेंडेंट. भाई अगर सारे कोएफिशिएंट 0 हों, वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर सारे कोएफिशिएंट 0 ना हो, वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट. भाई अगर सारे कोएफिशिएंट 0 हो तो वेक्टर्स क्या कराएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर सारे कोएफिशिएंट 0 ना हो तो वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट. जी, इफ n इज इक्वल टू 1 देन v1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एज v1 इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर था ना, ये 0 कब होगा, जब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता है. सपोज n इज ग्रेटर देन 1 and the result is true for n is equal to k and k is less than equal to n minus 1. Suppose alpha 1 a1 v1 plus a2 v2 up to so on an vn is equal to 0 where ai belongs to real numbers. भाई then a को दोनों तरफ जरा दे दीजिए, भाई लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी. तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाएं, a1 बाहर, a कैपिटल a इंटू v1 प्लस a2 बाहर, कैपिटल a इंटू v2 अप टू सो ऑन प्लस an बाहर, कैपिटल a इंटू vn इज इक्वल टू 0 को जब किसी से ज़रूरत दोगे 0 आएगा जी. अब से देखेगा a1 v1 किसके बराबर होगा, लैम्डा 1 v1. a v2 किसके बराबर होगा, लैम्डा 2 v2. a vn किसके बराबर होगा, लैम्डा n vn. तो वी राइट a1 लैम्डा 1 v1 प्लस a2 लैम्डा 2 v2 प्लस ऑन an लैम्डा n vn इक्वल टू 0. इसको 2 कह देंगे. मल्टीप्लाई 1 बाय लैम्डा n, भाई 1 को आप लैम्डा n से ज़रूर दे दीजिए. वी गेट a1 लैम्डा n v1 प्लस a2 लैम्डा n v2 प्लस ऑन an लैम्डा n vn इक्वल टू 0. इसको 3 कह दें. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, भाई 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, भाई 2 को 1 से तफरी कर दें. वी गेट a1 बाहर आएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा n v1 प्लस a2 बाहर आएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा n v2 प्लस ऑन an माइनस 1 बाहर आएगा, लैम्डा n माइनस 1 माइनस लैम्डा n vn माइनस 1 इक्वल टू 0. बाय इंडक्शन v1 v2 और vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. भाई ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट. ठीक है जी, ये सारे वेक्टर लीनियर. तो क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे जी, 0. देयरफॉर a1 इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा n is equal to a2 lambda 2 minus lambda n is so on an minus 1 lambda n minus 1 minus lambda n equal to 0. Since lambda 1 lambda 2 up to lambda n are distinct, भाई सारे distinct हैं, so lambda i minus lambda n is not equal to 0 for I is equal to 1 2 3 4 up to n minus 1. Hence जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तो लाजमी हो, hence a1 0 a2 0 a3 0 up to an minus 1 0. सारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल टू 0 होगा. सो फ्रॉम 1 वी हैव an lambda n इक्वल टू 0. भाई जब सारे 0 हो जाएंगे तो वी गेट फ्रॉम 1 से an lambda n इक्वल टू 0. भाई यहाँ से क्या आएगा जी, ये बचेगा an lambda n इक्वल टू 0, बट vn इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर an 0. लिहाजा जब an 0 होगा तो इसका मतलब v1 v2 अप टू vn के सारे कोएफिशिएंट्स क्या 0 हैं. तो v1 v2 अप टू vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये सारे क्या हैं जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट. भाई ये सारे क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट. इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन लैम्डा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा जी. इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 1. भाई थ्योरम है, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन लैम्डा की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 होगा जी. लेट ए बी एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. फर्ज कर लें ए जो है ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है, एंड लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए. और लैम्डा क्या, आइगन वैल्यू ऑफ ए. और फर्ज कर लें कि भैया लैम्डा जो है ना आइगन वैल्यू ऑफ ए है. भाई देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरोस कॉलम वेक्टर v belongs to R and such that AB is equal to lambda V.
ए वी किसके बराबर है, लैम्डा वी की जी, इसको 1 कहते हैं जी। नाउ दोनों तो ट्रांसपोज ले लें, ए वी का ट्रांसपोज बराबर होगा लैम्डा वी का होल ट्रांसपोज, वी गेट वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल लैम्डा, आगे वी का ट्रांसपोज, इसको 2 कहते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, भाई फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए वी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू क्या होगा ए वी, वी लैम्डा वी ट्रांसपोज इंटू लैम्डा वी। भाई इन दोनों को आपने इस तरह लिख दिया जी, ठीक है। बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट वी ट्रांसपोज बाहर ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर आगे क्या होगा वी ट्रांसपोज इंटू वी। बट ए इज ऑर्थोगोनल, भाई ए ऑर्थोगोनल है, भाई ए क्या है, तो ए को ए ट्रांसपोज के साथ जब तो जवाब आइडेंटिटी आएगा जी, तो वी ट्रांसपोज आइडेंटिटी इज इंटू वी इज इक्वल लैम्डा स्क्वायर वी ट्रांसपोज इंटू वी। वी गेट 1 मनफी लैम्डा स्क्वायर बाहर, 1 मनफी लैम्डा स्क्वायर अंदर, ठीक है जी। वी ट्रांसपोज इंटू वी इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि भाईजान जब चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तो एक लाजमी 0 होगा, सिंस वी इज़ नॉट इक्वल टू 0, वी 0 नहीं है, लिहाजा वी ट्रांसपोज को जब वी के साथ जरूरत दोगे जवाब 0 नहीं होगा। वी हैव 1 मनफी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल 1, यानी कि लैम्डा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल 1 और लैम्डा मैग्नीट्यूड इज इक्वल क्या का 1 होगा। ये हमने साबित करना था भाई, ये हमने क्या करना था, साबित करना था। थ्योरम है एनी टू आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। क्या है ऑर्थोगोनल, एनी टू आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, बट डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऑर्थोगोनल है आर ऑर्थोगोनल, कहते हैं आइगन वेक्टर्स क्या होंगे जी, ऑर्थोगोनल होंगे जी। एनी टू आइगन वेक्टर्स, 2 आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, जिनका आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल होगी आर ऑर्थोगोनल, भाई जन वो क्या होगा जी, ऑर्थोगोनल होगा जी। आपको पता है एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल का पता, जब उसको उसके ट्रांसपोज के साथ रख दो तो जो आपका आइडेंटिटी जी। सपोज ए बी एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सपोज ए V1 बराबर है लैम्डा 1 V1 and a V2 बराबर लैम्डा 2 V2, where lambda 1 is not equal to lambda 2, भाई where lambda 1 is not equal to lambda 2। now a V2 का ट्रांसपोज बराबर होगा लैम्डा 2 V2 का ट्रांसपोज, दोनों तरफ आपने ट्रांसपोज ले लिया जी। वी गेट V2 का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये लैम्डा 2 इंटू V2 का ट्रांसपोज। नॉट एक आपने V2 का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए V1, लैम्डा 2 V2 का ट्रांसपोज इंटू लैम्डा 1 V1, भाई आपने लेफ्ट वाली को लेफ्ट के साथ अटैच कर दिया, राइट वाली को राइट वाले के साथ। यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, भाई यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट V2 का ट्रांसपोज बाहर ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू V1, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाहर, आगे V2 का ट्रांसपोज इंटू V1 जी। V2 का ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी इंटू V1 इज इक्वल लैम्डा 1 लैम्डा 2, V2 का ट्रांसपोज इंटू V1 10 1 मनफी लैम्डा 1 लैम्डा 2 अंदर आके V2 का ट्रांसपोज इंटू V1, ठीक है, इक्वल टू 0। आपको तो यूज लैम्डा 2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल लैम्डा 2 का स्क्वायर। तो भाई जहाँ पे 1 लिखा हो यू कैन पुट लैम्डा 2 का स्क्वायर, वी राइट है लैम्डा 2 का स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2, आगे V2 का ट्रांसपोज इंटू V1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा 2 बाहर निकाल लो, अंदर का लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू V2 का ट्रांसपोज इंटू V1 इक्वल टू 0। भाई बिकॉज लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 एंड लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। भाई लैम्डा 2 0 नहीं है, लिहाजा क्या होगा जी, सो लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 जी, ठीक है। भाई ये भी 0 नहीं है, ये भी 0, ये 0 नहीं होगा, लिहाजा फिर ये V2 का ट्रांसपोज इंटू V1 इक्वल टू 0। आपको पता है इन अदर वर्ड्स हम इसको लिख सकते हैं V2 V1 का इनर क्या होगा 0, भाई V2 इंटू V1 का इनर क्या होगा 0, ठीक है। जब V1 V2 का इनर 0 होगा तो सो V1 V2 आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो भाई V1 V2 का होगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
भाई v1 v2 क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। भाई जब दो वेक्टर्स का इनर जीरो तो दोनों वेक्टर्स का इनर ऑर्थोगोनल जी। भाई v1 v2 का चूंकि इनर जीरो है, सो वेक्टर्स v1 v2 आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।